Okay, Ji. So in our face-to-face classes, we were discussing about the soil compaction, and you learned all the basics to understand the soil compaction physical phenomena in terms of soil mechanics. So in our previous lecture, we discussed about what is soil compaction and also the benefits of the soil factors that affect the degree of the soil compaction. Then we talked about the compaction lab tests like standard Proctor test and modified standard Proctor test. We also discussed about the field test, which were sand cone method, and I think you may have performed the core cutter and sand cone both during the lab. So we also briefly talked about the field compaction in terms of what we call is smooth rollers and the pneumatic tire rollers, and also we discussed the sheep foot rollers. So today we will talk more in details about the we will talk about the field compaction, and I will show you how Keller, which is one of the manufacturer of the intelligent compaction equipment, we will discuss few of the ground improvement techniques to understand the applicability of compaction. We will also talk about how organic soil and the waste material basically make compaction really challenging. And so as you can see, the course learning outcomes CLO1 is about understanding of the fundamental concept of compaction, which we already have covered in our previous lecture. Then CLO2, course learning outcome 2 of our subject is applied soil mechanics principle to the compaction effort. And CLO3 is soil improvement, which is the last topic of this subject, where we will improve the ground which have the consolidation settlement issue or the compaction related issues. So this was just the introduction. Okay. So these we already covered in our previous lectures. So we have to start lecture from the field compaction. Now, I believe that all of you are able to understand compaction. So there are few intelligent compaction equipment. One of the very famous manufacturer is a Keller. Okay, so Keller basically have different categories of the compaction, and one of the category of the compaction is the rapid impact compaction. Okay, so RIC. So let's see what is RIC. RIC basically you use for the improvement or the densification or the compaction of the shallow granular soils. Okay, so this is not for the clayey soil. This is for the granular soil. And who will tell me the two type of the granular soils? Yes, sir. बताएं आप मुझे Sand and नाम gravel. में. Very good, sand and gravel. And even if we say sandy silt, it means that it is also a granular soil, because silt is not predominantly present in that sample. And if we say sandy clay, it means there is some fraction of clay, but it majority of the soil components are of sand. So we can call that as a granular soil. So shallow and deep, I hope you understand what is shallow means less depth and deep means higher depth. Okay. So RIC, which is rapid impact compaction, you use for the shallow sites. And type of the soil is a granular soil. And what is the mechanical phenomena is a hydraulic hammer. So you can see this machine that there is a hydraulic hammer and there is a drop height. So it is continuously, they are dropping it on the ground, and you can see that this is how the vibration are passed and the ground is improved. Okay. So what are the common uses? For example, if we want to construct our house on the reclaimed land or the earth filling, वहां पे जो हमने कहीं से सॉइल बारो पिट से ला के और फिर उसको
फिल किया और वहां पे हम घर बनाना चाहते हैं, तो वी मे यूज दिस टेक्निक टू इंक्रीज द बेरिंग कैपेसिटी. सो इंक्रीज ऑफ बेरिंग कैपेसिटी मींस, sorry, reduction in settlement. So these are very basic uses. The processes for the compaction, for example, what happens is the energy is transformed to the अंडरलाइंग साइल विच इज अ ग्रेनुलर साइल. और फिर जब इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो जो ग्रेनुलर साइल के पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं. डेफिनेटली अगर एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, तो अगर आप, और दूसरा ये है और तीसरा चौथा ये है सपोज, और जब हम कंपैक्शन करते हैं तो दिस इज लाइकली कि ये यूं आ जाए, मतलब पार्टिकल ऐसे एक दूसरे के क्लोज आ जाए. तो यू कैन सी के देयर इज अ डेंसिफिकेशन इफेक्ट बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल. सो दिस इज द प्रोसेस दैट is responsible for the compaction. Now, for example, if you want to construct a 4 or 3 story building, suppose this is your plot size, और यहाँ पे आपकी कॉलम की लोकेशन है. सपोज पहला कॉलम आपका ये है, दूसरा ये है, ओके, तीसरा ये है. आई एम प्लॉटिंग द प्लान व्यू, टॉप व्यू, ओके, तीसरा और चौथा. तो आपकी यहाँ पे सपोज वॉल्स हैं, ओके, दरमियान में. सो यू डोंट नीड टू कंपैक्ट द इंटायर प्लॉट, ओके, बिकॉज द लोड जो होगा स्ट्रक्चर का, दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रक्चर टू द कॉलम, देन कॉलम टू द फाउंडेशन, एंड फ्रॉम फाउंडेशन टू द सॉइल. सो हम सिर्फ इन लोकेशन के ऊपर जहाँ पे हमारी बिल्डिंग का लोड ट्रांसफॉर्म हो रहा है उस जगह पे जाके हम क्या करेंगे, फील्ड कंस्ट्रक्शन करेंगे. दिस कैन आल्सो बी अ केस ऑफ ब्रिज जहाँ पे वो फाउंडेशन रेस्ट कर रही है. So I hope you understand the location of the impact are typically located on a grid pattern. For example, if you see there are 6 columns with the, yes. सर तो हम ये फाउंडेशंस जिन जगह पे होते हैं उनको कंपैक्ट कर लेंगे, या जिस पे कॉलम्स होते हैं उसको कंपैक्ट कर देंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर. This is column, okay, and this is the foundation. Below this, you are सर आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही सर आप. अभी आ रही है आपको आवाज में? सर अब आ रही है. अब आ अब आ रही रही है ओके. सर. सो कॉलम के नीचे फाउंडेशन होती है. डेफिनेटली लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जहाँ पे लोड ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसके नीचे फाउंडेशन होगी. दिस इज ऑब्वियस, ओके, और वहां पे हम कंपैक्शन करेंगे. और एक्सक्यूज मी इसके सर. एडवांटेज, यस सर अक्सर ये होता है कि दीवारें मतलब बैठ जाती है ना, ज़मीन में धंस जाती हैं, कुछ क्रैक्स होते हैं. तो सर अगर फाउंडेशन को हम कंपैक्ट कर भी दें और दीवारों की नीचे ज़रूरत नहीं होती सर, क्यों फिर? ओके. ये जो आप बात यूज कर रहे हैं ना, दीवारें, ठीक है, दिस इज नॉट द वर्ड, दैट इज नोन एज अ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के ऊपर जो आपके घर बने हुए हैं वो लोड दीवारों के जरिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है. और एक होता है आरसीसी स्ट्रक्चर, रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर. उसके अंदर दीवारें सिर्फ पार्टीशन होती हैं, स्ट्रक्चर का लोड जो है वो कॉलम, बीम और फाउंडेशन उठा रही होती है. लेकिन जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है जो सिर्फ दीवारों पे बना है, वो डेफिनेटली जो रूफ स्लैब का लोड है वो दीवारें उठाती हैं और दीवारों के नीचे फाउंडेशन होती है. इन दैट केस बिशारत यू नीड टू कंपैक्ट द साइल इन दैट रेंज ऑफ द वॉल्स, ओके. आप समझ सर गए आप? हमें सर ये जो घर बन रहे होते हैं ना सर, ये तो मतलब खोद के उसमें मतलब वो भी डालते हैं, ये सो वो रॉक टाइप डालते हैं सर. तो वो क्यों करते हैं, Okay, we कंपैक्ट क्यों are नहीं not करते सर? constructing basic homes that you are discussing. Okay, that is a layman practice. हम एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. जैसे ये आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये वाला यस सर, नज़र आ रहा है सर. एक कॉलम है और ये उसकी फाउंडेशन है. ओके, सो यू शुड नॉट आइडियलाइज योर ओन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज. उस अभी मैं इस फिनोमेना की डिस्कस नहीं कर रहा कि वो सबसे पहले एक्सकेवेट करते हैं, फिर एक्सकेवेशन करने के बाद उसके ऊपर जो है वो एग्रीगेट डालते हैं, जो आप कह रहे हो रॉक के पीसेस या स्टोन्स के पीसेस जिसे हम कोर्स एग्रीगेट कहते हैं वो डालते हैं. फिर उसके ऊपर हम पीसीसी करते हैं, फिर उसके ऊपर हम 18 इंच की ब्रिक मैसनरी करते हैं, फिर 13.5 की करते हैं, और फिर प्लिंथ दे के और फिर 9.5 इंच की जो है वो दीवार उठाते हैं. दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ दिस सब्जेक्ट, ठीक है. हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि अगर आपका कोई भी स्ट्रक्चर, ये ब्रिज भी हो सकता है, ब्रिज की फाउंडेशन भी हो सकती है, जहां पे आपका लोड ट्रांसफर हो रहा है वहां पे आप
RIC करेंगे, रैपिड इम्पैक्ट कंपैक्शन. इज इट क्लियर नाउ? यस सर, थैंक यू. ओके, सो एडवांटेज ये है कि ट्रीटेड ग्रेनुलर सॉइल जो अब फॉर एग्जांपल हमने फिल की है, वी बेसिकली fill the site by bringing the soil from the borrow pit side. तो उसकी डेंसिटी, उसकी फ्रिक्शन एंगल, स्टिफनेस, यू डोंट नीड टू वरी ये क्या होते हैं, ठीक है. We will talk about these terms in geotechnical engineering, but these are known as shear strength parameters. So इन शॉर्ट वो सॉइल की स्ट्रेंथ बढ़ा देती है. इसका एडवांटेज ये RIC का, रैपिड इम्पैक्ट कंपैक्शन का. ओके, सो दिस इज लो कॉस्ट ट्रीटमेंट टू द सॉइल, और इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो 3 to 4 मीटर इन डेप्थ है. यानी कि यू कैन कंपैक्ट इट, यू कैन यूज दिस कंपैक्शन फॉर द शैलो साइट्स जो कम डेप्थ तक, और वो रेंज जो केलर ने रिकमेंड की है दैट इज 3 to 4 मीटर. Below this RIC will not be very effective, may not be effective actually. Not very good. इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो स्मॉलर इक्विपमेंट है, इजीली मोबिलाइजेशन हो जाती है इसकी. enable the shallow foundation to be used opposed to the deeper. For example, you can improve the soil, और improve soil करने के बाद आप वहां पे इस तरह की एक shallow foundation दे सकते हैं. लेकिन एक्सक्यूज अगर मी आप सर. नहीं करते RIC की, तो you may need to start pile foundation. आपको शायद इधर piles देने पड़े, बड़े बड़े कॉलम देने पड़े ग्राउंड में, which are very costly. तो इसका सर पर्पस है RIC का कि सर आपकी आपका आवाज दोबारा सर वो इको के साथ आ रही है सर, समझ नहीं आ रही. सर अभी ये ठीक है, मोबाइल अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है सर. जी सर, जी ओके, आ रही है सर अब. इको है अब? सर ये स्मार्टर हाँ सर. इक्विपमेंट विद फास्टर मोबिलाइजेशन, सर ये किसे कहते हैं मोबिलाइजेशन सर? मोबिलाइजेशन ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी टेलर की ये जो नजर आ रही है आपको कंपैक्शन मशीन RIC, रैपिड इम्पैक्ट कंपैक्टर, ये मेरी वर्कशॉप के अंदर, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, खड़ी है, और मैंने, मेरी साइट कहाँ पे है, सपोज इस्लामाबाद में है, मैं GIK के अंदर हूँ, या मेरे इस्लामाबाद में ऑफिस है, वहां पे मशीन खड़ी है, तो मैंने GIK लेके आनी है, तो जो ये ट्रेवल करेगी फ्रॉम इस्लामाबाद टू GIK या साइट ऑफ इंटरेस्ट, इसको मोबिलाइजेशन कहते हैं. ओके सर. ओके, सो इस पूरी स्लाइड का बेसिक पर्पस ये था कि टू शो यू के सिर्फ न्यूमेटिक रोलर्स नहीं है, या स्मूथ फुट रोलर्स नहीं है, या वाइब्रेटर्स नहीं है, ये भी इस तरह के भी इक्विपमेंट हैं RIC जैसे भी, जिससे आप रैपिडली कंपैक्शन कर सकते हैं. तो ये जो अभी हमने RIC की एग्जांपल देखी है, इस तरह की एक सेंटर बना, यानी कि एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसको हम WBTC कहते हैं, विच इज बेसिकली रिपोर्टेड बाय द केलर वेबसाइट. तो वहां पे क्या इशू था कि वो वहां पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाना चाहते थे. ओके, जो क्लाइंट था वहां पे, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, वो वहां पे बिल्डिंग्स बनाना चाहता था. तो जो साइट थी वो बेसिकली एक कार पार्किंग थी, लेकिन उसके नीचे जो ग्राउंड था वो ओल्ड लैंडफिल साइट थी. कौन बताएगा लैंडफिल साइट क्या होती है? एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज लैंडफिल साइट? फॉर एग्जांपल, जो भी वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो या हाउस वेस्ट हो, या जो भी हमारा आपके घरों का जो कचरा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पे जाके डंप होता है. ओके, तो उसको हम कहते हैं लैंडफिल साइट. तो वहां पे जाके उस लैंड के ऊपर जो है मतलब उस लैंड की जो सॉइल है उसके अंदर बेसिकली बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्टेज इज प्रेजेंट ओवर दैट. तो अब इस एरिया की जो अप्रोक्सीमेटली 11,000 मीटर क्यूब ऑफ जो है ना वो सॉइल या ये मटेरियल जो लैंडफिल का था, वो रिक्वायर्ड था इसको रीफिल करने के लिए. अब इसका क्या मतलब है कि ये साइट है फॉर एग्जांपल, ओके, और मैं अगर इसका सेक्शन प्लॉट करूं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तक डेप्थ है लैंडफिल की, यानी कि इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म का वेस्ट मटेरियल है और साइल है वो मिक्स हो गए. तो एक प्रपोजल ये था कि इस मटेरियल को हम यहाँ से एक्सकेवेट करें और इसको डिस्पोज ऑफ कर दें किसी और जगह पे जाके साइड पे,
और फिर इसकी जगह एक नई सॉइल जो कि अच्छी कंडीशन की हो वो लेके आए, फिर उसे कंपैक्ट करें। एक प्रपोजल ये था कि हम इस तरह की कंस्ट्रक्शन करें, ओके, क्योंकि ये कंटेमिनेशन हो चुकी है साइट की, और यहाँ पे बड़ा एक्सपेंसिव है। ये जो मैंने आपको प्रपोजल बताया, सबसे पहले वहां से उस पूरी साइल को 11,000 मीटर क्यूब को एक्सकेवेट करना, फिर उसे लोड करना, फिर उसे हाल करना, यानी कि साइट से लेके किसी और साइट पे जाके डंप करना, दिस इज टू मच कॉस्टली। फिर उस पूरी एरिया को दोबारा एक बारोपिट साइट पे जाना, वहां पे दोबारा एक्सकेवेशन करना, फिर ट्रक्स में भरना और दोबारा आके उसे कंपैक्ट करके डालना, दिस दिस इज टू मच एक्सपेंसिव। तो वहां पे जो क्लाइंट था जिसकी ये बिल्डिंग थी, जिसने बनानी थी वहां पे स्ट्रक्चर, ये आपको नजर आ रहा है, RIC जो रैपिड इम्पैक्ट कंपैक्टर है वो लगा हुआ है, और वो उस तरह कंपैक्शन कर रहा है। तो उन्होंने केलर से बात की, विच इज बेसिकली वन ऑफ द वेरी फेमस कंपैक्टर्स फॉर द ग्राउंड इंप्रूवमेंट टेक्निक, कंपैक्शन करने के लिए, ठीक है। तो केलर ने बेसिकली इसका क्या सोल्यूशन प्रपोज किया। अब केलर ने कहा कि चैलेंज क्या था। चैलेंज ये तो था ही जो मैंने आपको बताया, लेकिन एक सबसे बड़ा इशू ये था कि अगर केलर कहता है कि हम ये ग्राउंड इंप्रूव करते हैं, तो वहाँ की इन्वायरमेंट जो कम्युनिटी है वो कहेगी कि ये तो ग्राउंड के अंदर एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस आपको पता है इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अगर वो फॉर एग्जांपल इनहेल करे कोई, वहां पे पोल्यूशन हो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, और वो एस्बेस्टॉस जो है वो, तो लोगों को वहां पे कोई एलर्जी हो सर आपकी सकती है। आवाज अभी फिर नहीं आ बस रही। सबको आवाज नहीं आ रही। सर आ सर सर साहब रही सर है, आप आ रही आ है रही है सबकी। सर, आ रही इंटरनेट Okay, so if there is someone who is having issue on his own end, so please make sure that you have a good internet connection, okay? Because I can only make sure on my side. Anyways, तो मैं आपको ये बता रहा था कि चैलेंज ये था कि जब इस साइट के ऊपर केलर इंप्रूव कर लेती, ग्राउंड और कंस्ट्रक्शन होती, और ड्यूरिंग कंपैक्शन जो वहां पे डस्ट जनरेट होगी, उस डस्ट में अगर एस्बेस्टॉस हो, विच इज अ बेसिकली कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल जो वहां पे ऑलरेडी डंप था, तो वो लोगों को एक डस्ट एलर्जी क्रिएट कर सकता था, और उसकी वहां पे पब्लिक इन्वायरमेंट जो अथॉरिटीज हैं वो अलाउ नहीं करती। ये तो एक चैलेंज था। दूसरा चैलेंज ये था कि जब इसको वो कंपैक्शन करेंगे RIC यूज करके, तो बड़ा नॉइज क्रिएट होगा, ठीक है। और तीसरा ये है कि क्या ये मटेरियल उतनी कंपैक्शन के बाद इफेक्टिव होगा कि हम उसके ऊपर कोई जो है वो WTC सेंटर यानी कि वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो ये चैलेंजेस थे। तो केलर ने क्या किया कि उसने बेसिकली 2 RIC यानी कि रैपिड इम्पैक्ट कंपैक्टर मशीन्स वहां पे मोबिलाइज की, ओके। और फिर 1.1 मीटर, जब जब उन्होंने कंपैक्शन की उस साइड की, तो 1.1 मीटर तक सेटलमेंट होगी, ओके, रिमूविंग द नीड फॉर द। और उन्होंने इस पूरी साइट पे ना कोई एक्सकेवेशन की और ना कोई नया मटेरियल लाया, बल्कि उसी को एग्जिस्टिंग वेस्ट को ही उन्होंने इम्प्रूव कर दिया, ओके। और दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल के व्हेन यू विल बी इन फील्ड, तो बड़े चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स होंगे। तो मोस्टली इंजीनियर्स क्या कहेंगे कि ओके लेट्स रिमूव दिस सॉइल, डिस्पोज ऑफ एंड ब्रिंग न्यू सॉइल, दिस इज वेरी कॉस्टली। Other way is to have the innovative, intelligent compaction, consolidation, or ground improvement technique like RIC, which is basically rapid impact compactor. So this was just one of the एक्सक्यूज मी case सर। study. Yes, सर yes. अगर वो जो एरिया वो कंटेमिनेटेड है, मतलब कोई केमिकल रिलेटेड इशू है, तो कंपैक्शन से क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं कि वो नई डेंजर रहता है? बेसिकली उस हम कंपैक्शन से केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज कर रहे, लेकिन जब हम कंपैक्शन करेंगे तो वी हैव टू मेक श्योर कि वहां से जो डस्ट उठेगी वो एयर के साथ बड़े फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रेवल करेंगे, ओके, विच इज नॉट द सब्जेक्ट। ये कौन है जिसका माइक ऑन है? हेलो, ओके। सो वो जो फाइन पार्टिकल्स होंगे वो वहां पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। तो जो इंजीनियर इस फेवर में है कि हम कंपैक्शन नहीं करते, वो इस तरह के चैलेंजेस बताएगा, ओके। और जो केलर है जिसकी बेसिक जॉब ये है, उन्होंने इसको मिटिगेट करना है। एनीवेज, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द field application of the compaction, and one of the new equipment which is RIC, वो मैंने आपको मशीन दिखानी, तो you can even check this over this link which is provided on the slide. There is Excuse me, sir. another. Yes. सर मेरा क्वेश्चन है सर, हम
फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैक्शन करते हैं, फिर उसके बाद फाउंडेशंस डालते हैं ना सर? हाँ जी 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 बिल्कुल, बस यही पूछना था सर, थैंक यू। मेरी क्लास है जी। हेलो, ओके। तो दिस इज अनदर केस ऑफ द कंपैक्टर। ये आप देख रहे हैं इसकी शेप, फॉर एग्जांपल ये जो है, दिस इज अ ट्रैक्टर और एक मशीन है जिसके पीछे उन्होंने नॉन सर्कुलर रोलिंग मॉड्यूल लगाया हुआ है। ओके, जब ये मूव करेगा तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। जब वाइब्रेशंस होंगी प्रोड्यूस तो ये क्या करेगा, डेंसिफिकेशन कर देगा, वहां पे एयर वाइड को रिमूव कर देगा। मींस इट विल इंक्रीज द कंपैक्शन, विच मींस इट विल इंक्रीज द। जब हम कहते हैं कि ये जगह कंपैक्ट हो गई है तो हम उसे कैसे मेजर करते हैं, कौन बताएगा? सर रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करते हैं। वेरी गुड, यस। इट मींस के उस उधर ड्राई डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये मोस्टली हम यूज करते हैं कोलैप्सिंग सैंड, जहाँ पे ऐसी साइट हो जो ग्रेनुलर मटेरियल और कोलैप्सिबल हो और उसे हमने डेंसिफाई करना हो। ओके, कोल्ड स्टॉक पाइल्स फॉर एग्जांपल, लोग जो कोल्स को स्टॉक करते हैं, मतलब डंप करते हैं, तो वो ऐसे नहीं कि कोल एक साइट है और वहां पे उन्होंने उसे डंप करना है तो बस वो प्लेस करते जाएं, अनलोड करते जाएं। नहीं, दे हैव टू कंपैक्ट इट फॉर, एंड दैट रिक्वायर अ वेरी ह्यूज वाइब्रेशन। तो इस तरह की यूज की जा सकती हैं। इसे इंडस्ट्रियल साइट्स पे भी यूज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर। बट सो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि द स्क्वायर इम्पैक्ट रोलर्स आर towed behind a tractor running at a speed of approximately 10 to 12 kilometer per hour. A number of passes are undertaken to ensure the compaction energy is applied evenly across the treatment area. तो अब ये कितनी दफा चलाया जाएगा ये डिपेंड करता है कि उसकी क्या सॉइल की टाइप है, उसके अंदर कितने परसेंट ऑफ सैंड है, कितने परसेंट ऑफ सिल्ट है। ओके, दिस इज मेंट बाय नंबर ऑफ पासेस। फिर हम बताते हैं कि इस पे नंबर ऑफ पासेस कैसे निकालेंगे। ओके, दिस इज हाईली प्रोडक्टिव। ओके, एंड the cost is very much, I mean, economical, and it is also environment friendly. So in situ compaction can eliminate the excavation of existing field. For example, कहीं पे एक साइट है, ठीक है, वो अग- अगर ये एक रोड का लेवल है और आपका प्लॉट इधर है सपोज, ओके, सो आप डेफिनेटली इस प्लॉट को आप घर यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। सो यू वांट टू फिल दिस साइट। तो जब आप फिल करेंगे इस साइट को, तो ये ऑलरेडी अगर फिल्ड है तो यू नीड टू परफॉर्म द कंपैक्शन। तो यू मे यूज द इम्पैक्ट रोलिंग कंपैक्टर। लेकिन किस तरह की सॉइल के लिए ये यूज करना है? अगर ग्रेनुलर सॉइल है, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सो आपको जैसे मैंने बताया कि स्मूथ रोलर है, न्यूमेटिक रबर टायर रोलर होता है, ओके, एंड देयर इज अ वाइब्रेटर रोलर, ओके, देयर इज अ RIC रैपिड इम्पैक्ट कंपैक्टर, एंड देयर इज आल्सो the impact rolling compactor which is shown over here. This is just an example. Okay, तो एक केस स्टडी इसकी भी मैंने एक स्लाइड के अंदर आपको मतलब सिर्फ समझाने के लिए शो की है, और वो ये है कि पर्थ के अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी। ओके, एंड देयर वाज अ नीड फॉर द एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहाँ पे उन्होंने जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर बनाना था सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, सो यू विल स्टडी व्हाट इज द ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर डिफरेंट सर्कुलर फाउंडेशन होती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। एनीवेज, ये प्रोजेक्ट था, और वहां पर जो साइट थी उसके अंदर टॉप के ऊपर फ्रॉम सरफेस 0 to 4 मीटर, सॉरी 2 to 4 मीटर लूज सैंड थी। ओके, अब ये लूज सैंड है, अगर आप इसके ऊपर डायरेक्टली स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? वहां पे जो एयर वाइड्स हैं वो रिमूव होंगे स्ट्रक्चर के लोड की वजह से, और क्रैक्स आएंगे स्ट्रक्चर के अंदर। और ये एक ट्रीटमेंट प्लांट है, अगर उसकी वॉल में क्रैक आएंगे तो दिस इज वेरी डिजास्टर। ओके, और दूसरा इशू ये है कि अगर इसकी मेंटेनेंस कास्ट भी ओवर टाइम जो है वो बढ़ती जाएगी। तो केलर ने एक और कॉन्ट्रैक्टर के साथ ज्वाइंट वेंचर किया इस, और ये जो मैंने आपको पीछे इम्पैक्ट रोलिंग कंपैक्टर दिखाया ये वहां पे यूटिलाइज किया।
ओके। और 36,000 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसको इन्होंने ट्रीट किया, यानी कि उसकी 2 to 4 मीटर जो वो सैंड थी उसकी डेंसिटी इंक्रीज कर दी, विच मीन्स के उसकी कंपैक्शन होगी। ओके, एंड विच मीन कि उसकी बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। और इन्होंने 12 टन्स का 4 साइडेड रोलर यूज किया। ये जो है फॉर एग्जांपल यूं यूं फिर यूं, ये जो आपको मैंने ये दिखाया है पीछे भी, ये वाला। ओके, ये 3 साइडेड है एंड दिस इज 4 साइडेड। सो यू कैन सी ये जब रोटेशन होती है तो इसका इम्पैक्ट होता है जिससे वो एयर वाइड्स डिक्रीज होंगे। और अब कितने नंबर ऑफ पासेस उन्होंने यूज किए? 30 to 40। ओके, और फिर दोबारा उन्होंने FDT की या CPT। व्हाट इज CPT? आई विल एक्सप्लेन यू इन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, यू डोंट नीड टू गेट वरीड ओवर हियर। ओके, और फिर अब इनके पास 2 ऑप्शन थे। कोई बताएगा ऑप्शन 1 क्या था अगर वो ये कंपैक्शन ना करते? शाबाश, एनीवन? रिमूविंग रिमूविंग ऑफ सॉइल। हाँ, तो एक ऑप्शन तो ये था कि ये जो लूज सॉइल है इसको हम रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह कोई अच्छी सॉइल बाहर से, तो दिस इज वेरी कॉस्टली। और दूसरा सोल्यूशन ये था कि हम उसको कंपैक्ट कर लें, जैसे ये शो मैंने किया आपको। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि इससे उनकी जो है ना वो बड़ी कास्ट रिड्यूस हुई। और सिर्फ कास्ट इस तरह नहीं रिड्यूस हुई कि दिस इज कॉस्टली आइटम। अगर ये इसको रिमूव करते तो उसमें एक टाइम लगता और फिर दोबारा उधर फिलिंग करते, कंपैक्शन करते उस साइल की और दोबारा टाइम लगता, तो इससे प्रोजेक्ट भी डिले हो जाता है। ओके, सो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स that you need to see while selection of the this is another equipment. Okay, ये इसको अगर आप देखें कि ये एक क्रेन है और क्रेन के नीचे ये बहुत बड़ा हैमर है। ओके, और ये ड्रॉप करते हैं उसकी कंपैक्शन इंप्रूव करने के लिए। पर्थ स्टेडियम जो आप देखते हैं उसकी पिचेस और पार्किंग में यूज हुआ है। यू कैन स्टडी इट बाय योरसेल्फ, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ओके, बट दिस इज वेरी सिंपल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you may ask me. This is another kind of the compaction technique which is known as vibrostone columns. Okay, so let's see ke what are the vibrostone columns. So you can see कि these equipments are required. Okay, so इसके अंदर वो क्या करेगा कि सबसे पहले इस बकेट को भरेगा स्टोन्स के साथ, फिर इसको लिफ्ट करेगा और इसकी टॉप के ऊपर जाके एक रॉड होगा उस ट्रिमी टाइप का, ठीक है, उसमें ये फिल कर देगा और ये स्टोन्स जो है वो फॉल करेंगे इस कोन के अंदर और ये कोन वाइब्रेट कर रही है। यू कैन सी दिस। ओके, फिर ये एक रिक्वायर्ड डेप्थ तक जाएगी और वहां पे जाके ग्रेवल्स को या ये जो स्टोन्स हैं उनको ड्रॉप करेगी और सिर्फ ड्रॉप नहीं करेगी, उसके बाद उसे कंपैक्ट करेगी और इस तरह ये कॉलम बनते जाएंगे। इसको कहते हैं वाइब्रोस्टोन कॉलम, कंपैक्शन बाय वाइब्रोस्टोन कॉलम। सो यू कैन सी द एंटायर प्रोसेस। सर ये कॉलम सर क्यों बन रहे हैं सर, ये जरा एक्सप्लेन करें सर। Sorry, just let me finish this video, then I can take a question. Okay, so someone asked me कि कॉलम क्यों बने हैं, कौन जवाब देगा क्यों बने हैं कॉलम? सर इसलिए स्ट्रक्चर कॉलम बने सर कि जो Yes. सर कॉलम लोड को सर इसलिए ट्रांसफर बनाए कर गए हैं लोड को ट्रांसफर करें। जो सर एग्जिस्टिंग बेसिकली सॉइल है वो बहुत लूज है, उसकी जो ड्राई डेंसिटी है बहुत कम है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एयर है। जब आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो जो बिल्डिंग है उसके लोड की वजह से सेटल होगी। जब वो सेटल होगी तो स्ट्रक्चर में क्रैक आएंगे, विच इज ऑब्वियस। ओके, अब इसके लिए ये एक मेरा डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विद वन कैन प्रपोज। कोई कहेगा ये कर दो, मतलब आप साइड रिमूव कर दो, नई साइड ले आओ। कोई कहेगा कि आप इसकी कंपैक्शन कर लो। So I'm telling you variety of the method. So one of the method is a vibrostone column. वो कैसे होता है? I told you कि there is a killer vibrofloater machine, okay, जिसके अंदर हम stones एक साइज होता है उसका पर्टिकुलर वो फिल करते हैं और फिर वो नीचे फॉर एग्जांपल वी
ड्रिल दैट इनसाइड, और फिर वहां पे हम ड्रॉप करते हैं, फिर उसको कंपैक्ट करते हैं और उससे उसकी कंपैक्शन हो जाती है। और ये जो लोड है ये सारा ट्रांसफॉर्म हो रहा है इन कॉलम्स को। दिस इज एग्जांपल ऑफ वाइब्रोस्टोन कॉलम ग्राउंड इंप्रूवमेंट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर ये जो कॉलम बनाए गए हैं तो इसमें कोई बाइंडर यूज हुआ है या जस्ट ये रॉक फिल कर दिया उसे कंपैक्ट कर दिया? देयर इज नो बाइंडर। ओके यस सर, थैंक यू सर। ओके, so let's see another type of compaction which is known as vibro compaction. Okay, तो वाइब्रो कंपैक्शन के अंदर अभी हम सिर्फ वाइब्रेटर यूज करेंगे। ओके, यू कैन सी देयर इज अ टेलीस्कोपिक क्रेन, एक क्रेन है और उसके एंड पे ये वाइब्रेटर है, ये नजर आ रहा है आपको सबको? ओके, तो ये वाइब्रेटर कॉन्टिन्यूसली जो है जब ग्राउंड में जाएगा तो साइल के जो वायर्स हैं वो रिमूव होंगे, तो डेफिनेटली खाली मतलब एम्प्टी स्पेसेस डेवलप होंगी, इसलिए हम उसमें साइल एक फ्रंट एंड लोडर आएगा और वो इस वाइब्रेटर के ऊपर एडिशनल साइल गिराएगा। जो वाइड्स फिल होंगे उनके अंदर ये सैंड जाकर फिल हो जाएगी या साइल फिल हो जाएगी। ओके, एंड इफ यू वांट टू सी द डिटेल्स तो ये मैंने लिंक दिए हुए हैं जिनके ऊपर जाके आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। दिस इज नोन एज द वाइब्रो कंपैक्शन। सो यू कैन सी इट के वो जो वाइड्स हैं उनके दरमियान नई साइल आ रही है, जैसे वो कलर चेंज हो रहा है। ओके, फाइनली आपने जो है वो उस जगह पे जाके फाउंडेशन अपनी इंस्टॉल करनी। एनीवेज, अगर मैं इधर आऊँ तो अगर मैं इसको समराइज करूँ जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है, तो टिपिकली यू सी देयर इज अ थ्री बेसिकली, दो इसके टायर हैं और एक आगे रोलर है। इसको हम कहते हैं स्मूथ व्हील रोलर। ओके, ये न्यूमेटिक रबर टायर रोलर है जो आप बहुत ज्यादा देखोगे जब आप रोड कंस्ट्रक्शन देखोगे। यू मूव, ये शीट फुट रोलर है। फिर वाइब्रेटर भी लगा सकते हैं आप शीट फुट के अंदर भी और ये स्मूथ के भी अंदर, एंड यू कॉल दैट एज अ वाइब्रेटरी रोलर। Okay, then I told you there are some intelligent compaction equipment which has been constructed by the world very famous geotechnical contractor which is known as the Keller. अभी और भी बहुत सारे हैं which I cannot explain. If you have the interest, you can just visit their website and see by yourself. Okay, so then I explained you RIC which is the rapid impact compactor, जिसमें हम एक hydraulic hammer है जो drop करते हैं। Okay, फिर हमने उसकी एक केस स्टडी डिस्कस की। देन वी डिस्कस द इम्पैक्ट रोलिंग कंपैक्टर। फिर उसके बाद उसकी एक केस स्टडी हमने डिस्कस की। देन देयर इज एन अदर टाइप ऑफ द इम्पैक्ट कंपैक्टर, उसके अंदर हम वेट ड्रॉप करते हैं बाय अ क्रेन। ओके, और इफ ये पर्थ स्टेडियम है जो उसके अंदर पिच बनाने में, पार्किंग और प्रैक्टिस एरिया के अंदर उन्होंने ये यूटिलाइज किया है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो यू कैन जस्ट विजिट दिस लिंक एंड यू कैन रीड इट। इफ देयर इज एनी इशू यू कैन आस्क मी। देन आई डिस्कस्ड अबाउट वाइब्रोस्टोन कॉलम्स compaction, which is one of the ground improvement technique. Okay, then we also discussed about the vibro compaction. So the purpose of all these additional method was just to show you how the intelligent compaction techniques are selected for different particular situations. Any question up to here? Then I will move on the slide 43. एक्सक्यूज मी सर। Yes. सर ये स्टोन कॉलम हमने सर क्यों लगाए, प्रॉब्लम क्या था वहाँ? तो बताएगा कि क्या प्रॉब्लम था? Anyone else? सर Loose 4 to 5 sand, मीटर loose तक जो soil. सेंड। Okay, so one student please at one time. Okay, so who would like to answer this very simple question? Okay, why we are doing all of these compaction techniques? मैं जवाब दूं सर? जी जी बिल्कुल। सर इसका आंसर ये है क्योंकि हमारे पास उधर 3 to 4 मीटर्स तक जो थी वो लूज सैंड थी, सारी लूज सॉइल थी, तो उसकी वजह से हमने कंपैक्शन की ताकि वो लूज ना रहे। तो अगर हम डायरेक्टली इसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाते तो क्या होता कि वो सेटल सर होता, वो उसमें ओवरफ्लो भी कर सकता था और क्रैक्स हाँ आके वो गिर भी सकता था। ओके,
तो उसकी मेंटेनेंस होती, वो स्ट्रक्चर ना गिरता, लेकिन अगर उसमें क्रैक आते तो क्रैक फिल करने पड़ते, मतलब इसको हम मेंटेनेंस कहते हैं विच। यस और सर। ये घर नहीं, जरूरी नहीं है कि आपने किसी भी ग्राउंड पे सिर्फ घर बनाना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका वहां पे ऑयल का स्टोरेज है, ऑयल के स्टोरेज देखें आपने कितने कितने बड़े सर्कुलर सिलोज टाइप होते हैं, टैंक टाइप होते हैं, ओके। तो वहां पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्रैकिंग हो या उसके अंदर सेटलमेंट हो, ओके। उसके अलावा अगर वहां पर एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, जैसे मैं ये दिखाता हूँ आपको, ओके गिव मी 1 मिनट। दिस डजंट मीन कि ये सिर्फ घरों के लिए इस्तेमाल होगा, ओके। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सर्कुलर फाउंडेशन है, बहुत बड़ा टैंकर है, ठीक है। अब मुझे मतलब यू कैन हैव सच फाउंडेशन फॉर सीमेंट टैंक की हो सकती है, वाटर टैंक की हो सकती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टैंक की हो सकती है, देख रहे हैं आप। तो यू कैन नॉट अफोर्ड, अभी इसके अंदर एक तो लोड इस स्ट्रक्चर का अपना है, उसके बाद अगर इसके अंदर आप पानी फिल कर देते हैं, ये वाटर टैंक है या ये ऑयल टैंक है जिसकी अपनी एक यूनिट वेट है, उसका अपना एक प्रेशर है, ओके। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके अंदर अगर क्रैक आएगा तो यू कैन नॉट अफोर्ड दैट मेंटेनेंस। इट मींस यू हैव टू डिस्ट्रॉय दिस एंटायर फैसिलिटी इफ देयर इज एनी लीकेज, ओके। तो इसलिए अब स्टोन कॉलम कोई देना चाहता है, वो मतलब दिस इज, कब हम स्टोन कॉलम देंगे, कब हम, दिस इज आवर सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। currently my subject is to introduce you about the different compaction, intelligent compaction technique, and to equip you to understand the physics behind that, okay। मेहरान आप समझ जाइए आपको, ओके सर, समझ आ गया। ओके। अब एक और एग्जांपल आप देखो, ये तो हो गई वो फाउंडेशन जो टैंक की, ये देखो अब ये एक रीन्यूएबल एनर्जी का वो प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि जो फॉर एग्जांपल ये हैं, क्या उसे कहते हैं, विंड टर्बाइन, ऑफशोर विंड टर्बाइन या ऑनशोर विंड टर्बाइन। जामशोरों के पास एक जंभीर जगह है, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े विंड टर्बाइन, इसका पता नहीं कितने टन का लोड होगा, ओके। तो आप अगर इसे एक ऐसी ग्राउंड के ऊपर बना दें जिसके अंदर एयर वाइड्स हों, तो जो ही इसका लोड पड़ेगा तो एयर वाइड्स बैठेंगे, ओके, एंड देयर कैन बी क्रैकिंग एंड देयर कैन बी कोलैप्स एंड टिल्टिंग of this entire and this cost $1 million, okay। So यहाँ पे देर कैन बी डिफरेंट, यहाँ पे पायल हो सकती है जो कि टिपिकल लोग करते हैं, बट जब आप पायल करेंगे तो आप उसमें सीमेंट यूज करेंगे, आप उसके अंदर कॉस्टली होगी, ठीक है। अगर आप ग्रेवल या स्टोन यूज कर रहे हैं तो विच आर वेरी वेरी सस्टेनेबल एंड लोकली अवेलेबल मटेरियल, आपको क्रशर लगाना है एंड यू क्रश, बट this is not the topic of this subject, okay। The topic of the subject is to give you an idea about the different type of compaction technology। मेहरान ठीक है, ओके सर, ऑलराइट। okay। So this was about the field compaction equipment. Now we will talk about the effect of वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट। नोट करें आप अपनी नोटबुक के ऊपर, हम अभी डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ रोलर पासिस। जब हम रोलर पासिस पास करेंगे तो कंपैक्शन कितनी एफिशिएंट होती है, कितना यूनिट वेट बढ़ता है, ओके। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंटेंट, फॉर एग्जांपल अगर वहां पर उस साइट के अंदर कोई पहले लोग जो हैं, जैसे मुल्तान में डीएचए के अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा आम लगे हुए थे, मैंगो ट्रीज थे, ओके। तो वो एक ऑर्गेनिक उसके अंदर रूट्स होंगे डेफिनेटली, या उसके अंदर फर्टिलाइजर यूज किए होंगे, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंटेंट वाली, सपोज मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि रावी के किसी किनारे के ऊपर, ऑन द रावी रिवर यू सी कि देयर इज अ लॉट ऑफ वेस्ट विच इज स्टेइंग ओवर देयर। तो पता नहीं पिछले 40 साल में कितना वेस्ट सॉइल के अंदर मिक्स हो गया होगा, ठीक है। यहाँ आप शालकोट्स की साइड्स हैं, वहाँ पे राइस होता है, ओके। तो उसका जो वो हश सी है, ओके, वो ऑर्गेनिक कंटेंट हो गया। वहाँ पे हमने कोई स्ट्रक्चर बनाना है, ओके, वी वांटेड टू कंस्ट्रक्ट सम स्टेडियम, सम बिल्डिंग, सम ब्रिज, सम ड्राई पोर्ट। तो वहां पे हमें कंपैक्शन तो करनी पड़ेगी, इसलिए हमें पता होना चाहिए
कि नंबर ऑफ पासिस का क्या रिलेशनशिप है कंपैक्शन के साथ, ऑर्गेनिक कंटेंट का क्या रिलेशनशिप है कंपैक्शन के साथ, ओके। या कहीं पे स्लज है, फॉर एग्जांपल वेस्ट वाटर है, ये जो आपका सीवेज है घरों का, ठीक है, ये जब जाता है तो डेफिनेटली ये सॉइल के अंदर कहीं पे ये डिस्पोज ऑफ होता होगा, और वहां पे अगर आपने बिल्डिंग या कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वहां पे स्पेशल आपको कंपैक्शन की केयर करनी पड़ेगी, ओके। So this is one of the plot which has been, selected from the BM Das book, और BM Das ने ये basically select किया है, हाईवे रिसर्च बोर्ड है, NRC, नेशनल रिसर्च काउंसिल वाशिंगटन DC से, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, अगर आप उसका ये एक्सिस देखेंगे तो ये ड्राई यूनिट वेट है और ये एक्सिस नंबर ऑफ पासेस है, ओके। सो दिस इज बेसिकली अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ पासेस एंड द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सॉइल। अब आपने परेशान नहीं होना, ये बेसिकली FPS सिस्टम है, यानी कि पाउंड फीट वाला सिस्टम है, और ये MKS है, यानी किलो न्यूटन मीटर वाला सिस्टम है, ओके। सो लेट्स कंसीडर ओनली दिस। So this is basically relationship between number of passes, roller passes। जैसे कहीं पे रोड बनानी है तो आप कितनी दफा ये रोलर चलाते हैं, न्यूमेटिक रबर टाइप शीप फुट या कौन सा, ओके। और ये ड्राई यूनिट वेट जो आप मेजर करेंगे, डेफिनेटली जब आप कंपैक्शन करेंगे तो यू मस्ट हैव सम मॉइस्चर कंटेंट जिसके ऊपर आप कंपैक्शन कर रहे हैं। तो ये वाली कर्व है 11.6 मॉइस्चर कंटेंट की, और ये वाली कर्व है 17.8 मॉइस्चर कंटेंट की। तो इससे हम तीन चीजें कंक्लूड करेंगे, एक इफेक्ट ऑफ रोलर पासिस करेंगे, एक ड्राई डेंसिटी के ऊपर उसका इफेक्ट करेंगे, और दूसरा मॉइस्चर कंटेंट का क्या इफेक्ट है वो देखेंगे, ओके। और जो जहां पे इन्होंने ये टेस्ट किया है, इन्होंने बेसिकली सिल्टी क्ले, वो साइल कौन सी है, सिल्टी क्ले, जिसकी लिक्विड लिमिट ये थी और प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये था। तो ये जो वाशिंगटन DC वाले जो बोर्ड है, इसने वहां पे फुल स्केल जो है ना पेवमेंट्स बनाए, फॉर एग्जांपल फुल स्केल उन्होंने ट्रायल पासेस बनाए, उसके ऊपर उन्होंने सॉइल की एक लेयर डाली, फिर उसको कंपैक्ट किया। उस एक दो तीन, फॉर एग्जांपल ये पहला ट्रायल है, ये दूसरा ट्रायल है, ये तीसरा ट्रायल है, ये चौथा ट्रायल है। इस ट्रायल के ऊपर सपोज उन्होंने सिर्फ 8 रोलर चलाए, इस ट्रायल के ऊपर सपोज उन्होंने 16 रोलर चलाए, ओके। इस ट्रायल के ऊपर उन्होंने 24 रोलर चलाए और इसके ऊपर 34। फिर उन्होंने वहां पे FDT या कोर कटर मेथड से ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट किया, और फिर ये उन्होंने कर्व बनाई, सपोज ये, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट ओनली दिस कर्व। तो यू कैन सी के तकरीबन 10 से 15 तक जो है ना, अगर आप पासिस लगाएं तो आप ड्राई यूनिट वेट अचीव कर जाते हैं तकरीबन 16.2 का। और अगर आप डबल लगा लें 16 से 32 तो कोई सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल रोलर पास डबल हो गए हैं, यहाँ पे 16 रोलर पास थे, यहाँ पे 32 हो गए हैं, ओके। लेकिन ड्राई यूनिट वेट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि इन्होंने ये कहा कि जो इस तरह की सॉइल है, सिल्टी क्ले है, इसके लिए अगर 11% मॉइस्चर कंटेंट है, या 17 है, या 20 है, या 10 है, या 5 है, इसके लिए जो इफेक्टिव रेंज ऑफ रोलर पासिस है वो आप 10 से 15 लगाएं। इससे ज्यादा अगर आप लगाएंगे तो इट विल नॉट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द कंपैक्शन या ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। So this is one conclusion. Okay. Then give me one more. Okay. So it says that dry unit weight of the soil at the given moisture content increases to certain point with the number of the roller passes. Beyond this point, it remains approximately constant. यहाँ जितना हमारा 16 से 32 रोलर चलाने के अंदर बहुत ज्यादा डीजल लगेगा, पेट्रोल लगेगा, लेकिन जो हमारी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, या कोई भी इंजीनियर सजेस्ट करेगा कि अगर हमने सिल्टी क्ले विद दिस रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज के लिए करनी है तो लेट्स सजेस्ट कि अगर ये रोड बननी है GIK से तो इस्लामाबाद, तो वी विल ओनली बी हैविंग द नंबर ऑफ passes from 10 to 15 because it yields economical dry density. So I hope this plot is clear to every one of you. Is there any question on effect of the roller passes on compaction or the increment of the dry density?
सो जब हमने कोई रोलर नहीं लगाया, जब हमने कोई कंपैक्टिंग एफर्ट नहीं की, तो ड्राई डेंसिटी है तकरीबन 12.7 12.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और जब हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 16 लगाए हैं रोलर पासिस, तो दिस इज ऑलमोस्ट 16 पॉइंट समथिंग 16.2। सो यू कैन सी के देर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, और ये बनता है 16.3 माइनस 12.7 डिवाइडेड बाय 16.3। सो दिस इज ऑलमोस्ट 22% इंक्रीमेंट। बट अगर आप ये देखें कि आप डबल करते हैं उसके ऊपर पासेस, 32 पासेस लगाते हैं, ओके, तो वो सिर्फ 0.4 तकरीबन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है 16.2 माइनस 16.6 डिवाइडेड बाय 16.6, तो सिर्फ 2% जो है ना उसकी डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। मतलब 2% सिर्फ जो है कंपैक्शन इफेक्टिव हो रही है। इसलिए इट इज इकोनॉमिकल to recommend 10 to 15 passes, and there is no need to have more passes because it will just consume your fuel, your equipment depreciation cost will be increased, but it will not increase the compaction. So this was about the effect of the number of the roller passes. और हम इस तरह सजेस्ट करते हैं कि इस फाइल के लिए आप इतने passes इस रोलर के चलाएं, और ये डिजाइन के अंदर गिवन होता है। जब रोड बनती है या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो वो इसको फॉलो करते हैं। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, सर हमें Yes. कैसे पता चलेगा कि ये ड्राई यूनिट वेट की जो लिमिट है वो मतलब अप्रोच कर गई है, इससे ज़्यादा हमने जो है वो पास नहीं देने? कोई भी कंट्री है ना, फॉर एग्जांपल, तो उसने इस तरह की कर्व्स, डिजाइन कर्व्स गिवन होती हैं डिफरेंट सॉइल के लिए, ओके। तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि जिसकी आपने रोड बनानी है वो सिल्टी क्ले है या सैंडी ग्रेवल है या ग्रेवली सैंडल है, ये आपको पता होगा। तो उसकी इस तरह की ग्रोथ कर्व्स गिवन होंगी। इन ग्रोथ कर्व्स को देख के आप डिसीजन लेंगे कि कितने नंबर ऑफ पासेस आपने लगाने हैं। अब आपको आंसर मिला? जी सर, यस सर। ओके, सो मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ वाइवे में या एग्जाम में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द रोलर पासेस ऑन द compacting on the compaction. So you have to explain all of this plot. This is another plot, okay. You can see कि इसके अंदर सैंड के ऊपर उन्होंने एक सैंड का बनाया ट्रायल, और उसके ऊपर वाइब्रेटर चलाया, यानी कि जो कंपैक्टिंग इक्विपमेंट है वो न्यूमेटिक रबड़ नहीं है, ना स्मूथ फुट वो है, ना शीप फुट है, ओके। दिस इज अ वाइब्रेटिंग कंपैक्टर उन्होंने यूटिलाइज किया, जिसके अंदर वाइब्रेशंस होती हैं ड्रम के अंदर। और फिर अगर आप ये देखें तो ये डेप्थ है, ओके, और ये ड्राई यूनिट वेट है। सो लेट्स टॉक अबाउट इन मीटर्स, मीटर और एमकेएस सिस्टम में। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस एंड दिस। सो यू कैन सी के उन्होंने फॉर एग्जांपल जो 0 to 1.83 मीटर यानी कि 6 फीट की तकरीबन उन्होंने एक ट्रायल वो लिए हैं, ओके। सो दिस इज फर्स्ट कर्व इज इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रोलर पासेस विद डेप्थ, यानी कि उन्होंने उसके ऊपर रोलर पास चलाए हैं 2 सिर्फ। ये कौन सी सॉइल है? ये सैंड है, ओके। और कौन सा रोलर है? वाइब्रेटरी कंपैक्टर है, ओके। और इसके ऊपर ये जो पहली कर्व आपको नजर आ रही है, उन्होंने 2 रोलर चलाए, और इस डेप्थ के ऊपर ड्राई डेंसिटी एफडीटी किया या कोर कटर किया, उनको ये ड्राई यूनिट वेट मिला तकरीबन, यानी कि 16.2। फिर उन्होंने 0.5 पे किया तो उनको 16.5 मिला। फिर उन्होंने सपोज 1.5 पे जाकर एफडीटी की, और इस तरह करके तो उन्होंने ये कर्व बनाई। फिर उन्होंने एक और ट्रायल बनाया सैंड का, उसके ऊपर सेम वाइब्रेटरी कंपैक्टर लगाया, सब कुछ सेम है, लेकिन अब नंबर ऑफ पासेस 5 हैं। विद डेप्थ आप वो इफेक्ट देख रहे हैं। अगेन उन्होंने 0.2 मीटर के ऊपर किया, फिर 0.5 मीटर पे किया, फिर 0.75 मीटर पे कोर कटर किया, या क्या उसे कहते हैं एफडीटी किया, ओके, या सैंड कोन रिप्लेसमेंट मेथड किया, 1.5 पे किया, ओके। और उन्होंने ये कर्व बनाई। सो ये 15 नंबर ऑफ पासेस की है, ये 45 नंबर ऑफ पासेस की है। तो ये बेसिकली जो ये सैंड थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सैंड सॉइल कौन सी थी? सैंड थी।
और उसकी ग्रेडेशन कौन सी थी, पुअरली ग्रेडेड थी। ओके, और हमने कंपैक्टर कौन सा यूज किया है, वाइब्रेटरी, जो ये बेसिकली रिसर्च विटमैन ने की है। ओके, जो थिकनेस थी, जो लिफ्ट थी, वो थी 2.44 मीटर की। ओके, यानी कि एक दफा उन्होंने साइल जो वहां पे डिपॉजिट की, जिसके ऊपर उन्होंने रोलर चलाना था, सपोज वो 2.44 मीटर थी। उसके बाद मैंने आपको बताया उन्होंने नंबर ऑफ पासेस चलाए और हर डेप्थ के ऊपर उन्होंने FDT किया और वो वैल्यूज उन्होंने ये प्लॉट कर दी। ओके, तो ये कहता है एट एनी डेप्थ द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द कंपैक्शन इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ रोलर पास। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 2 रोलर पास चलाए हैं 0.5 मीटर पे, तो आप ये देखें कि यहाँ पे एक यूनिट वेट है, यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा है। तो जूं जूं नंबर ऑफ रोलर पासिस इंक्रीज हो रहे हैं, ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, कंपैक्शन ज्यादा हो रही है। कंपैक्शन ज्यादा हो रही है, इसका मतलब है कि सॉइल की capacity to take load is increasing. So this is one conclusion. Okay, another conclusion is कि आप ये देखो कि जब 2 से हम 5 पे गए तो कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, यानी कि ओके, जब 5 से 15 पे गए यानी कि हमने 10 नंबर ऑफ पासिस लगाए, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज इन कंपैक्शन इज लेस। 15 से 45 हमने 3 यानी कि 6 गुना ज्यादा लगाए, लेकिन रेट ऑफ जो कंपैक्शन है वो लेस है। तो ये कहता है कि रेट ऑफ इंक्रीज इन यूनिट वेट ग्रेजुअली डिक्रीजेस आफ्टर 15 नंबर ऑफ पासेस, तो वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इट इज टिपिकली रिकमेंडेड टू गो फॉर 15 to 20। बट यहाँ पे सिर्फ आपको पर्पस ये था इस इन 2 स्लाइड का समझाना कि हाउ नंबर ऑफ पासेस इफेक्ट एट द पर्टिकुलर डेप्थ एंड एट डिफरेंट डेप्थ। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो 0.5 मीटर है उसके ऊपर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव हो रही है। ओके, तो कोई ये भी इंजीनियर रिकमेंड कर सकता है कि जब आप इसको, अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 मीटर की यहाँ पे सैंड डंप करनी है, ओके, तो वो ये कह सकता है कि आप 0.5 मीटर की एक लेयर डालो और फिर उसके ऊपर पासिस लगाओ। सपोज आपको ये वाला यूनिट वेट चाहिए 16.5। ओके, तो वो कहेगा कि इसका मतलब है कि आप कितने रोलर पास लगाओ इसके ऊपर, कौन बताएगा? अगर आपने 0.5 मीटर की पहली लेयर डालनी है, यस, कितने? 2 रोलर पासेस लगाएंगे ना, वेरी 2 रोलर गुड, पासेस। वेरी गुड, यस। तो आपने इस पे कितनी दफा रोलर चलाना है? जो वाइब्रेटरी रोलर है 2 दफा। अगर वो आप ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द लिफ्ट थिकनेस और नंबर ऑफ पासेस। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, आपको इसका एक, जब आप प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर जाएंगे तो आई होप के you will have more realization because you are going to compact it and you are going to have a number of passes of the roller. Okay, and then you are going to perform the field density test by core cutter या कोई भी आप method use करोगे, sand cone replacement method. So anyways, तो ये जो हमारे पास, yes, सर डेप्थ का मतलब ये है ना कि मतलब जो हमने लेयर्स देनी है उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए, वो इतनी 1 मीटर और ये होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल यही मतलब है। इसको हम लिफ्ट थिकनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिफ्ट थिकनेस। हाँ, अब समझ आइए। फॉर एग्जांपल ये हमने 4 मीटर का एम्बैंकमेंट बनाना है, ये रोड है ना जो, ये ग्राउंड लेवल से 4 मीटर हमने फिल करके बनाना है। ओके, तो अब एक तो तरीकाकार ये है कि हम पूरी 4 मीटर बना के उसके ऊपर रोलर चलाएं। दूसरा ये है कि हम पहले एक लेयर बनाएं, फिर उस पर हम 2 नंबर ऑफ पासेस या 4 या 6 लगाएं, उसे कंपैक्ट करें, फिर हम FDT करें, वहां पर कोर कटर मेथड करें, और फिर उससे हम ड्राई डेंसिटी, जो रिक्वायर्ड ड्राई डेंसिटी अगर वो आ रही है तो हम कहेंगे ठीक है जी, ओके। सो फिर हम अगली लेयर डालें, अगली। अब समझ आइए आपको? तो ये जो थिकनेस है इसको हम कहते हैं लिफ्ट थिकनेस। ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड। सो ये जो प्लॉट्स हैं, इन प्लॉट से आप क्या क्या चीज देख सकते हो? नंबर 1 थिंग कि आपको कितने नंबर ऑफ पासिस देने हैं। ओके, और फिर आप ये भी सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पासिस देने हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये लिफ्ट थिकनेस हमने कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम इस प्लॉट को देखें तो ये एक पीक है, ये दूसरी पीक है। इन दोनों पीक के दरमियान उसने कहा है कि डिस्टेंस कितने, 0.46 मीटर या 18 इंच। तो उसने कहा कि लेट्स हैव अ
लिफ्ट थिकनेस ऑफ 18 इंच। एनीवेज, सो अगर मैं स्लाइड इन तीनों स्लाइड्स को समराइज करूं तो फील्ड कंपैक्शन में इफेक्ट ऑफ रोलर पासेस, कैसे इकोनॉमिकल रोलर पासेस, आप किसी को कोई वहां पे 40 रोलर पासेस, तो वो तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ फ्यूल और ये प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी बढ़ा देगा। डेफिनेटली टाइम भी लगता है जब आप रोलर पास लगाएंगे। ओके, और वहां पे हो सकता है आपको 14 रोलर पासेस पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाती, तो आप 28 रोलर पासेस क्यों लगा रहे हो? सो यू हैव टू मेक श्योर कि इफेक्ट ऑफ द रोलर पासेस आपने ठीक तरह से ट्रायल जो है क्या से कहते हैं बना के पैसेज आपने वो स्टेब्लिश किया है। नंबर 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि विद डेप्थ कैसे लिफ्ट थिकनेस हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, सो दीज वर द 2 पॉइंट्स एंड दिस वाज एंड दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल कि आप कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा रोलर हमने यूज करना है। शीप फुट रोलर यूज करना है, रबर टायर रोलर यूज करना है, स्मूथ व्हील रोलर यूज करना है, या हमने एक छोटी सी बेस प्लेट लेनी है और उसके ऊपर कंपैक्टर लगा हो अगर हमने घर को कंपैक्शन करनी है, या हमने क्रॉलर ट्रैक्टर रोलर यूज करना है जिसके नीचे टायर नहीं होते, बेसिकली एक चेन होती है। ओके, या हमने पावर टेम्पर और रैमर यूज करना है। ये अगर कोई वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा तो यू कैन गूगल एंड यू कैन सी द इमेज। ओके, सो लेट्स सी वन ऑफ द एग्जांपल इज अ शीप फुट रोलर। आप एक साइट के ऊपर हैं तो वहां से उसकी साइल क्लासिफिकेशन करना इजी है या डिफिकल्ट है, कौन बताएगा? हेलो, कहाँ पे सर? कोई भी साइट है, आपने कोई अर्थ डैम बनाना है तो साइल क्लासिफिकेशन तो आप कर सकते हैं बाय सीव एनालिसिस या हाइड्रोमीटर एनालिसिस, राइट? यस यस सर। सर। तो यस जब आप यस। एनालिसिस कर लेंगे तो सपोज अगर आपकी फाइन ग्रेन साइल है, ओके, जो 200 पासिंग से मतलब जिसकी मोर देन 20% पासिंग है फ्रॉम नंबर 200 सी, जो भी इसका क्राइटेरिया, ओके, और ये सूटेबल नहीं है कोर्स ग्रेन साइल के लिए, पर्टिकुलरली अप्रूव्ड फॉर द कंपैक्शन इम्परवियस जोन ऑफ द अर्थफिल्ड डैम, आपने वहां पे डैम बनाना है तो उसको आपने इम्परवियस बनाना है। इम्परवियस का क्या मतलब है कि यू शुड नॉट अलाउ द वाटर टू पास फ्रॉम द वाइड्स ऑफ द सॉइल। तो अगर आपकी ये साइट कंडीशंस हैं सपोज, ओके, तो ये जो टेबल है ये कहता है कि आपने 95 टू 100% अगर ड्राई डेंसिटी अचीव करनी है, ओके, आपको पता है ना कि हम एक कंपैक्शन कर्व बनाते हैं जिसके अंदर ये ओएमसी होता है, फिर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी होती है, फिर हमने फील्ड के अंदर ये लैब में हम बनाते हैं और फील्ड में जाके हमने 95% या 90 टू 95% या 80 टू 90% या 95 टू 100%, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिकेशन, वो अचीव करनी होती है ड्राई डेंसिटी। ओके, तो वो कहता है कि अगर आपकी ये टाइप ऑफ सॉइल है जहां पे आपने काम करना है, जहां पे आपने कंपैक्शन करनी है, तो आपने कौन सा रोलर यूज करना है? विच इक्विपमेंट यू विल यूज? शी फुट। वेरी गुड। सो आपने यहाँ से शीप फुट, अब शीप फुट रोलर तो आपने सेलेक्ट कर दी टाइप, लेकिन आपको आगे किस चीज का ख्याल रखना है कि जो लिफ्ट थिकनेस है वो कितनी होनी चाहिए? वो कहता है, रिकमेंड कर रहा है कि 6 इंच टू 150 mm, ये एक जनरल गाइडलाइंस है। ओके, और फिर वो कहता है कि अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 30 है, ओके, तो आप ये यूज करें क्राइटेरिया फॉर एग्जांपल। ओके, और अगर उसमें कोर्स कंटेंट है या कोई और है तो फिर आप ये यूज करें। अगर वो कोर्स ग्रेन साइल है और उसके 6 to 8 नंबर ऑफ पासेस आप यूज करेंगे, अगर फाइन ग्रेन साइल है तो 4 to 6 आप पासेस यूज करेंगे। फिर जो शीप फुट रोलर होता है उसके जो फीट है उसका एक कॉन्टेक्ट एरिया, ये नजर आ रहे हैं आपको? एक मिनट, सॉरी, गो टू द शीप फुट रोलर। ये स्लाइड आपको नजर आ रही है ना? सो ये आपको जो इसके फुट है जो फॉर एग्जांपल इस तरह बना हुआ है, इसका एक कांटेक्ट एरिया है। तो आपको पता है कि जब किसी एरिया के ऊपर प्रेशर लगता है तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे उसने कहा है कि अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बेसिस के ऊपर आपको शीप फुट रोलर के अंदर फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन है कि एक शीप फुट रोलर है जिसका फुट कांटेक्ट एरिया ये है, एक यानी कि 30 to 80, एक है 45 to 90, एक है 65 to 90। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द इक्विपमेंट, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द
कंपैक्टेड लिफ्ट थिकनेस, नंबर ऑफ पासेस, और ये सारी डिटेल्स। और जो शीप फुट रोलर है उसकी बेसिकली जो फुट का कांटेक्ट एरिया है वो। अब अगर मैं आपको सॉइल की टाइप दे दूं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में, क्विज में, क्लास में या वाइवा के अंदर, ओके, और मैं पीएचडी कर्व दे दूं या सीव एनालिसिस का रिजल्ट दे दूं और आपको मैं ये टेबल दे दूं, तो यू विल बी एबल टू सेलेक्ट द इक्विपमेंट. यस सर। You must be Yes, sir, able to, very good. You must be able to recommend the compacted lift thickness. फिर आप इस टेबल से देखेंगे, ओके, आपको फॉर एग्जांपल ये वाली सॉइल है, फिर इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये है, ओके, तो आप कहेंगे कि हम शीप फुट रोलर यूज करेंगे, हमारा फुट कांटेक्ट एरिया ये होगा, और फिर मैं इतने नंबर ऑफ पासेस रिकमेंड करता हूँ, मैं इतनी लिफ्ट थिकनेस। तो मुझे ये अब रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है कि रबर टाइप रोलर के अंदर ये सॉइल टाइप है, ये क्या है, ये 250 क्या है, ओके. So this is, you have to study it yourself, and if there is still any question or confusion, you can ask me. But I have clearly, explained the purpose of this table. So similarly, there is a एक minute, there is a smooth field roller, vibratory base plate, crawler tractor, or the power temper, or the rammer. Yes, now you can ask me. कोई स्टूडेंट है क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। तो क्या मतलब है कि Yes. फुल मतलब एक के नहीं, पासिंग का मतलब एक एंड पे जाएगा फिर आएगा तो दो कवरेज हो जाएंगी, या नहीं एक साइड पे जाएगा फिर अपनी जगह आएगा तो एक कवरेज होगी? आई थिंक यही होता है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर यू कैन गूगल इट बिशारत, और फिर आप हम सबसे शेयर कर सकते हो कि व्हाट इज मेंट बाय वन कवरेज। आई थिंक वन कवरेज मींस के, क्योंकि वो जो पास है उसका मतलब ये होता है कि जहां से वो चलेगा फिर दोबारा वहां पे आएगा, पहले जाएगा फिर आएगा। ठीक है बिशारत, लेकिन वी कैन चेक इट। ओके, एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। यस। सर ये लिफ्ट थिकनेस सर, ये मतलब जो पेरी लेयर हम डालते, तो ये हाँ, कंपैक्ट होने के बाद उसकी इतनी थिकनेस होनी चाहिए? ओके। सो मेहरान का क्वेश्चन जो है उस, ये हमने एक एम्बैंकमेंट बनाना है, ओके मेहरान, ये सपोज, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट प्लॉटिंग स्ट्रेट, एनीवेज। तो ये है बेसिकली सपोज 10 मीटर का मेहरान, ओके सर, लिसनिंग। और जो साइल की टाइप है वो ये है, जो ये वाला क्राइटेरिया लगा हुआ है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने 150 की पहली लेयर डालनी है, फिर उसे कंपैक्ट करना है, फिर उसकी वो जो लैब की कर्व है वहां से आपको पता होगा कि इसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कितनी है, फिर उसकी जो ड्राई डेंसिटी वहां पे इन पासेस को चलाने के बाद 4 to 6 है, वो उसका 95 या 100% अचीव होगी, तो फिर आप अगली लेयर डालोगे। मेहरान आप समझ आइए आपको कि व्हाट इज मेंट बाय द कंपैक्टिंग लिफ्ट थिकनेस। समझ आ गई सर। Okay, good. So this was about selection of the equipment. Now let us talk about the effect of the organic soil or the waste material. I hope कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक साइल कब होगी और वेस्ट मटेरियल कब होगा। अगर कोई एग्रीकल्चर साइट है या कोई ऐसी साइट है जहाँ पे लैंडफिल यानी कि वेस्ट पूरे सिटी का डंप होता रहे किसी हिस्ट्री के अंदर, या फिर ऐसी साइट है जहाँ पे व्हाट वी कैन कॉल इज, ये जो सीवेज होता है आपका, ठीक है, जो घरों का या इंडस्ट्री का, वो वहां पे डंप होता है, ओके। और अगर उन साइट के ऊपर आपने कोई चीज कंस्ट्रक्ट करनी है तो यू मस्ट नीड टू नो द इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट। तो ये दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑर्गेनिक कंटेंट बाय परसेंट। फॉर एग्जांपल अगर एक ये सैंपल है, ओके, तो इस सैंपल में 5% का मतलब ये है कि 5% ऑर्गेनिक सॉइल है या ऑर्गेनिक कंटेंट है, और बाकी 95% इनऑर्गेनिक सॉइल है, ओके। ये 10, 15, 20 एंड 30%। सो यू कैन सी के अगर 5% है ऑर्गेनिक कंटेंट तो इसकी ड्राई डेंसिटी तकरीबन 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और अगर इसमें 30% बेसिकली ऑर्गेनिक कंटेंट है तो ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट डिक्रीजेस द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ओके।
सो इसकी कंपैक्शन यू नीड टू मेक श्योर कि ये अच्छी तरह हुआ है कंपैक्ट या नहीं। ये फ्रैंकलिन की एक रिसर्च है, ओके। और दूसरी उन्होंने जो रिजल्ट प्लॉट किया वो उन्होंने दिखाया ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ओएमसी का विद ऑर्गेनिक कंटेंट। तो यू कैन सी के अगर 5% ऑर्गेनिक कंटेंट है तो यू नीड almost 22% water, and if there is 25% organic content you need almost 35% water. Or believe me ke when the organic content, okay, so there is a statement कि soil with the organic content higher than 10% are undesirable for the compaction work. Anyways, लेकिन केलर ने ऐसी मशीनें बना ली हैं जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो RIC रैपिड इम्पैक्ट कंपैक्टर, जो इस तरह की चैलेंजिंग सॉइल्स को हैंडल कर सकता है। लेकिन 1973 के अंदर ये जो रिसर्च पब्लिश हुई थी, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि अगर 10% से ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट है तो अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल का मतलब ये है कि वहां से सॉइल को एक्सकेवेट करो, फिर फ्रंट एंड लोडर लगा के ट्रक में भरो और फिर डिस्पोज ऑफ कर दो, और फिर एक नई जगह से साइल दोबारा एक्सकेवेट करो जो अच्छी साइल है, जिसकी अच्छी ड्राई डेंसिटी हम अचीव कर सकते हैं, और उसे लोड करो, और लोड करके फिर लेके आओ साइट पे, और फिर दोबारा से उसको लिफ्ट थिकनेस में कंपैक्ट करो। सो यू कैन इमेजिन कि दिस इज वेरी कॉस्टली, राइट? ओके, सो बट आई हैव शोन यू इन आवर प्रीवियस स्लाइड्स के जो RIC है उसने इस तरह की एक साइट थी जो केलर ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या की, इम्प्रूव की। सो इफ यू आर ऑन सच अ साइट you should never recommend to remove soil and bring another soil. You should contact to the manufacturer, I mean केलर, एंड या किसी भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर से आप एक प्रपोजल बनाओ, और फिर आप इंटेलिजेंट कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाइक RIC पाकिस्तान के अंदर लेके आओ, एंड यू शुड डू द कंपैक्शन। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। एनीवेज, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं एग्जाम में, क्विज में या वाइवे में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑन द कंपैक्शन, तो दो तरह के इफेक्ट हैं। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन what we call is water content, okay, sorry, organic content. And also our next conclusion is that OMC increases with the increase in organic content. So this is basically the research by the Franklin, okay, in 1973. So any question for this slide के इसका purpose क्या था? Yes. सर ये दोनों इफेक्ट जो है जरा दोबारा रिपीट कर देंगे जो पॉइंट्स आपने बताए हैं। जी, शेर अफगन बात कर रहे। जी सर। ओके, शेर अफगन, ये देखो आपके ये किस चीज का रिलेशनशिप है, आप मुझे खुद बताओ शाबाश। ये जो पहली स्लाइड है, एक्स और वाई एक्सिस क्या है? हेलो जी सर। ये एक्स और वाई एक्सिस ये किस चीज का रिलेशनशिप है ये प्लॉट? सर ये ऑर्गेनिक कंटेंट का और साथ उसके जो ड्राई डेंसिटी है। वेरी गुड, ओके। तो आप ये देखो कि जब ऑर्गेनिक कंटेंट कम है, 5% है, तो ड्राई डेंसिटी क्या है? इंक्रीज हो रही है सर, इंक्रीज है, मतलब हायर है, ठीक है। और जब ऑर्गेनिक कंटेंट 30% है तो ड्राई डेंसिटी क्या है? लेस 0.2 है लिखा हुआ। हाँ, तो शेर अफगान हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट डिक्रीजेस या रिड्यूसेस द ड्राई डेंसिटी। यस सर। ओके, गुड। अब मुझे ये वाला प्लॉट आप एक्सप्लेन करो शाबाश। ये जो दूसरा है, ये पहले बताओ ये किस चीज का रिलेशनशिप है? सर ये ऑर्गेनिक कंटेंट का और साथ ये उसका OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अच्छा। और इसका क्या ट्रेंड है इसका? सर ये जिस तरह वो इंक्रीज हो रहा है, ऑर्गेनिक कंटेंट भी हो तो वाटर कंटेंट भी इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड। तो हम ये कह सकते हैं, और ये वाटर कंटेंट नहीं, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है। यानी कि वाटर कंटेंट तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये वो ऑप्टिमम मॉइस्चर। सो इसका मतलब ये है कि द इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीजेस द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब समझ आइए आपको? यस सर, ठीक है। ओके, गुड। एनीवन एल्स? मेहरान, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर है सर। फहद? यस सर, क्लियर है सर। ओके, गुड।
This is the research done by the Lancaster et al. 1996. अब इसने बेसिकली इसका चैलेंज ये था कि एक साइट थी जहां पे रेड वुड यानी कि जो वुड का वो फाइन पार्टिकल है वो साइल में मिक्स हो गए थे। ओके, एक साइट थी जहां पे राइस का जो वेस्ट है वो था। और स्लज क्या होता है कि ये जो आपका सीवेज वाटर है, जो आपके घरों का सीवेज वाटर है, ओके, ये इसके साथ बहुत ज्यादा जो है ना वो पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के साथ बह के जाते हैं। ओके, और उसको हम स्लज कहते हैं। यू कैन सी ऑन गूगल व्हाट इज स्लज एक्चुअली, बट दिस इज आई मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ द सीवेज जो होता है। तो ये सीवेज का प्लॉट है। ओके, दिस इज अ राइस हॉल एंड दिस इज द रेड फूड बाग। एनीवेज, अगर आप तीनों प्लॉट देखें तो ट्रेंड क्या है, कौन बताएगा? फहद, आप एक्सप्लेन करो कि व्हाट इज द ट्रेंड। सर ये जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट इंक्रीज होने से सर जो ड्राई यूनिट वेट है वो डिक्रीज हो रहा है सर। मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट डिक्रीज हो रहा है। गुड। ओके, और इधर अगर आप देखो तो स्लज के केस के अंदर इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट होने से सॉइल के अंदर ओएमसी तकरीबन कांस्टेंट ही रह रहा है, क्योंकि स्लज के अंदर इटसेल्फ जो है ना मॉइस्चर होता है। ओके, लेकिन राइस हाल्स और जो रेडवुड बाक है उसके केस में ओएमसी इंक्रीज हो रहा है विद, तो ये सिमिलर है। मतलब दिस इज आल्सो वन ऑफ द फाइंडिंग व्हिच आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू। ओके, सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि एसपीएसएम सॉइल किस ग्रुप का है? एसपीएसएम बेसिकली कौन सी सॉइल है? ये क्या हम इसे कहेंगे? ये क्लेली सॉइल है, सिल्टी क्लेली, ग्रेवली, ये क्या है? एनीवन? सर मेहरान ये बताओ। सर एसपी का मतलब है सर पुअरली ग्रेडेड सैंड। ये पुअरली ग्रेडेड सैंड है। और एसएम? ये सर एस फॉर सैंड और एम सिल्ट तो वेरी गुड। सैंडी। तो इस सब को हम ये कहेंगे कि एसएमएसपी का मतलब ये है कि ये पुअरली ग्रेडेड सैंड विद सिल्ट है। मेहरान ठीक है? ठीक है सर। ओके गुड। सो ये जो लैनकेस्टर था, इसने 1996 में एक साइट थी, तीन डिफरेंट किस्म की, एक के अंदर रेडवुड था वहां पे बहुत ज्यादा सॉइल में, और वहां पे उसने कंपेक्शन करनी थी, उसको उसने स्टडी किया। एक जगह पे राइस हाल्स थे, राइस का वो जो होता है वेस्ट, वो ठीक है। और एक स्लज था जो म्यूनिसिपल सीवेज वेस्ट होता है, जो आप लोगों के घरों का वेस्ट है पानी के साथ जो मिक्स होके जाता है। ओके, और ये उसकी एक एग्जांपल थी। एनीवेज, this was what can I say is the end of the lecture, and there is a problem. Okay, and I urge all of you to do it yourself. ये दोनों प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम 3 और ये असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, और ये आप करके सबमिट करवाएं, और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आई विल आई मीन present the solution in my next lecture. Anyone have a question? और ये आप CMS पे अपलोड करेंगे, मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा बाय थर्सडे, यानी कि कल और परसों परसों। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो सर हमने जो भी मतलब मेथड्स अभी पढ़े हैं, ये तो कंस्ट्रक्शन। फहद, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अपने आप को म्यूट कर लिए। हेलो, मेहरान, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। Okay, can you ask Fahad to send me question, okay, and then I can answer. Okay, so I mean, any one of you have any question? Otherwise, we are done with this lecture. सर ये असाइनमेंट असाइनमेंट थर्सडे को डेडलाइन थर्सडे 12 बजे तक के रात को के कोई टाइम स्पेसिफिक बता दें। 12 बजे तक कर देते हैं थर्सडे को, ठीक है? थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो मेरे कोर्सेज का वो मसला हल नहीं हुआ अभी तक सर। Okay. See, I already have
I mean, written to the administration A&E office, and they are looking into that. You don't need to get worried, okay? But I can't do more than that. सर तो वो असाइनमेंट कौन मेरे का बता कैसे रहे हो हैं रहा सर? है सर? Look, मैंने आपको उस ईमेल में CC किया ना, right? So let's wait Yes, for sir. their answer. Okay. सर All MOS right. 1 का बता दें सर. MOS1 का मैंने 3 स्टूडेंट्स की सिर्फ एप्लीकेशंस हैं, वो मैंने फॉरवर्ड कर दी हैं, एंड दे डोंट नीड टू गेट वरीड. बाकी 2 स्टूडेंट की ना मेरे पास एप्लीकेशन है, ना मेरे पास